Good morning, my dear students. All of you are welcome in this morning session of English Literature. I am Dr. Naresh Agarwal going to represent a very beautiful modern poem composed by T.S. Eliot. The poem is The Love Song of J. Alfred Prufrock, 1915. It is a modern poem and there are specific qualities of modern poem we will discuss in detail. So, in the subsequent stages, we will discuss one by one. This poem stands foremost in the poems Prufrock and Other Observations, 1917. It marks a complete break with 19th century poetic diction. Understanding? A total change, a complete break with 19th century poetic diction. It is an urban in its theme and setting. It is urban poem. Shahri. It reveals the ugliness of modern civilization. Ugliness, the dirty and hollowness, the shallowness of modern poetry and modern civilization. The never-ending streets of modern cities, smoking chimneys, yellow fog, dirty drains, and smell of female bodies. The poem is not a love song in the traditional sense of the word. It is not a spontaneous outburst of powerful feeling of the lover for the beloved. Rather, it is an analysis of the mind of the lover who is unable to take a decision about making the proposal to the lady he loves. In a series of paragraphs, the lover analyzes the reason for a resolution and redecision and tries to justify his cowardice and lack of nerves, which make him completely incapable of formulating a proposal of love to his lady. Behind this mental state is a disease of modern routine, the aimless life of the city dwellers, and the monotonous round of the social parties. In the text of the poem, there is an internal monologue. So let us discuss. Prufrock is an embodiment of split personality, a separation of head and heart, a paralysis of the will, and too much worry regarding a love proposal. Prufrock refers to Hamlet, and this enables us to understand Prufrock's psychological malady. Malady means bimari, modern disease, modern malady. This introspection is the result of emotional frustration. His irresolution is complicated by the fact that though he is middle aged, bald in the head, he is not hot blooded. He dresses smartly, smiles to ladies, but he is unable to express his inner state. His excuses for postponing the making of love proposal arise from neurosis and from his fear of rejection. The poem highlights the dilemma and indecisiveness as well as the squalor, gandagi and barrenness, kathorta jahan banjarpan of modern urban civilization. The first line of the poem, let us go, then you and I, may suggest that it is a dialogue between two persons, but it is not so. Williamson suggests that it is an internal debate in the mind of Prufrock between the two sides of his personality, which thereby highlights the neverness of neurosis. The poem can be best interpreted as an exposition of the moods and the conflicts of the mind of the Prufrock. So let us discuss. As the lines grow, the theme develops. It is evening time. Prufrock is conscious, but conscious of nothing outside his consciousness,
like a patient, like etherized upon a table. Students, are you able to watch the scene in words? Evening came like एन इथराइज्ड पेशेंट अपॉन ए टेबल. शाम का वक्त ऐसा है जैसे एक टेबल, सर्जन की टेबल के ऊपर ऑपरेशन के लिए एक मरीज़ लेटा होता है, बेहोशी और इथराइज कर देते हैं और खामोश पड़ा रहता है. इस प्रकार से जो नौजवान हैं वे भी खामोश हैं. देयर बोन्स आर हॉलो. द इम्पोर्टेंसी ऑफ मॉडर्न पर्सन्स is being reflected. Impotency, napusankta, kamzori, weakness, not only of man but also of woman. He is helpless. He has no strength left in him to act. Mentally, he wanders through the half-deserted streets till his mind reaches the most important question before him. He is afraid of mentioning it. It may be noted that this overwhelming question refers to his intended proposal to the lady of love. He avoids discussing this question. He reaches the restaurant where he finds the society ladies discussing Michelangelo. These ladies know practically nothing about the fine art, but since it is a fashion to talk about the paintings of great masters, they discuss the works of this talented Italian painter. Enough time to spare. Prufrock's indecisiveness. Ample time, free time. The fog outside is spreading on the window panes. खिड़की के शीशे हैं, उनके ऊपर फॉग, धुंध फैल रही है बाहर की तरफ. It is dull October night. It is the month of October and the night is dull because it is without light. It reflects the inner foggy conditions of the mind of the Prufrock. It is the reflection of the mind of the Prufrock. Like the fog moving slowly, the Prufrock is in no hurry to make a decision about his proposal. He feels that there will be enough time to decide about it. Meanwhile, the poem makes a sly comment on the hypocrisy of modern people who keep up appearances as a matter of routine. Again, the poet shifts to the condition of the mind of Prufrock. This proposal is very important for him, as important as murder, total failure of his life. आधुनिक इंसान, बहुत बड़े बॉम्बे जैसे सिटी में रहने वाले लोग ऐसे हो गए हैं, घूम फिर रहे हैं लेकिन दे आर जिंदा लाश. वो जीवित लाश ही हैं. उनमें इमोशंस, वार्मथ ऑफ इमोशंस नहीं है. उनके बॉडी के अंदर हॉटनेस नहीं है. उनकी इनर स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई है. इनरली दे आर वीक, दे आर हॉलो, दे आर शैलो. देयरफॉर he must take time and plan to it properly so that he may not fail in his endeavor. He might is in state of tension, and it is a specific quality of modern persons. Their mind is in a state of tension. They are always tension ridden. It is full of 100 indecisions, 100 visions and revisions. So he wants to take some refreshment which may give enough vitality to make up his mind. Of course, he is well dressed, though of middle ages. He cannot hide the marks of his face. Then he reverts to the important question and postpones the decisions because there is no hurry about it. In modern man, there is no daring nature. It means Prufrock's timidity, कायरता, डरपोकपन. Prufrock has known many ladies and enjoyed sessions of tea and coffee with them. He has also been intimate with some of them, but he dares not speak out his mind.
he is timid and cowardly, afraid of ladies, rebukes or taunts, in that case he would be wriggling on a wall fixed with a pin, wriggling, crawling. The trouble with him is, though he knows the ladies, he is afraid of making a proposal for himself. He would definitely feel embarrassed. The initially difficulty lies in brooding over the subject. His problem is how to begin. Mental fear of common human being in modern society, of high city dwellers. Prufrock now thinks of a plan to make a proposal to his lady. He would begin his talk with his fiancée by mentioning his friends who are lonely, in need of companionship. They would like to marry and settle down, but he feels that he may not have the courage to talk about the mentions his own name as one who needs a life companion. Though he is lonely and bored with his mechanical life and wants a change, still he may not be able to talk about his own case. He is afraid of death, and the very idea of death makes him reject his expressing love to a lady. Cold response of the lady. Prufrock takes a refreshment to gather courage to make decision. Supposing he talked about it to that lady, she might turn round and tell him she had no idea of loving him. She had been polite and courteous to him, but that did not imply that she would be agreeable to marrying him. Prufrock therefore is extremely nervous. Prufrock is the symbolic of modern man. He is extremely nervous. He thinks that if a magic and mechanical routine were to throw light on his inner feeling and display them to his lady, she may reject him. Here no Hamlet, but Polonius. Hamlet means a real thinker. So there is no real thinker, only pretentious personalities are there. Pretentious men are there. Prufrock denies that, like Prince Hamlet, he is indecisive and inactive. He is like Polonius, middle-aged, conscious of his position, though double-headed and sometimes ridiculous. Though he is old, he wants to appear young with the latest clothes. Prufrock is unable to face the problems of life. He seeks an escape to a romantic world. While walking on the beach, he has been mermaids singing to one another. He is dreaming about mermaids and the sea waves. When he is awakened by the human voices around, the realities of life cannot leave him, although he is unable to face them. The poem ends where it began. There is no progress with the love affair of Prufrock. His condition shows the nervousness and tension of the modern man and the barrenness of urban civilization. Symbolism and the style of the poem. It is a bundle of symbolism, and through these symbols, the poet really, in real sense, is able to see the past, the present, and the future. The poet is seer of the all times. He is timelessness. He has one time factor. So, a very big theme is being represented. In the past, it was the glory of men who attracted, but in modern society there is no glory. Therefore, this modern poetry is a sigh, for the vanished glory of the past.
the hollowness of the present. So let us discuss in detail. Eliot uses functional and compact imagery to clarify the neurosis and frustration of Prufrock. He borrows from Donne the metaphysical conceit. The very first line could have come through from Donne. The spreading frog represents the state of mind of Prufrock. He wishes to run away from the realities like a pair of ragged claws scuttling across the floor of the silent seas. There are literary images too, as for instances, Prufrock is a kind of Lazarus, a sort of Prince Hamlet, also like John the Baptist. There are ironic images, as for instance, I have measured out my life with coffee spoons. He is laughing here. The poet is laughing at the modern society, at the scene of modern society, at the hollowness, chichalapan of modern society. I have measured out my life with coffee spoons. His trivial personal matters appear to him as important as murder or creation or distributing the universe or squeezing the universe into a ball. All these show the craftsmanship of the poet. Secondly, the verification is also modern and suited to the mood of Prufrock. The metrical base is iambic, but the lines vary, change. It means change in length and number of stressed syllables. The rhyme scheme is not regular. It is flexible to suit the turn of the thought of the lover. The stanza pattern is also not irregular. The poem contains small interrogatory lines like "Do I dare?" or again "How should I begin?", which reflect the fear and hesitation of the protagonist in the modern society. The most important thing about the poem is that, like the spider web, makdi ke jale, it weaves strands around itself, but there is no movement or development. This gives a singular unity to the theme of the poem. It rotates and revolves in a single orbit, mind of Prufrock. So dear students, let me read the text of the poem, and before it, let me describe in brief the theme of the poem. कवि महोदय इतना बता रहे हैं कि एक वो ज़माना था, पुराना ज़माना, जब इंसान एक दूसरे पर विश्वास करता था, फेथ करता था, बिलीफ करता था, लेकिन आज इस मॉडर्न सोसाइटी में ना तो फेथ रहा और ना ही किसी में आस्था रही, कोई विश्वास जैसी चीज़ नहीं रही है. Deceiving and deception is dancing on the modern streets, in the modern malls, in the modern markets, in the modern कैफ़े हाउसेस. वो विश्वास जो कभी एक दूसरे को बांधे रखता था समाज में, सोसाइटी में, आज तो ना वैसा विश्वास, ना वैसी सोसाइटी. फिर कवि महोदय पुरुषत्व पर आ गए. आज के युग में बताते हुए शर्म आती है कि आज के नौजवान पुरुष, लड़के लड़कियां अपने समान संतान उत्पत्ति करने में भी सक्षम नहीं हैं. एक वो ज़माना था, पूछ के देखना अपने दादाजी से, कितने भाई बहन हैं? 5 भाई और 5 बहन, 10 और 2 वो 12, पूरे घर में भरा पूरा परिवार. लेकिन बच्चों, आज के दिन मॉडर्न सोसाइटी में इतनी समस्याएं आ गई हैं कि लड़कियां नशा करती हैं, उनका वूम्ब अंदर से इतना घायल हो गया है कि वो बच्चा उत्पन्न करने में शर्म भी समझती हैं और सक्षम भी नहीं हैं. वो खोखली, अंदर से शरीर खोखला हो गया. ये इस पोइम्स में लिखा है, ये मेरे शब्द नहीं हैं. लड़कों की बात करें, वो नपुंसकता को प्राप्त हो गए हैं, उनकी हड्डियां अंदर से खोखली हो गई हैं. वो एक ज़माना था जब मनुष्य फिजिकल लेबर, शारीरिक श्रम करता था,
दिन भर श्रम करके खूब अच्छा भूख लगती थी, खूब भरपेट भोजन खा करके रात्रि खूब विश्राम करने के लिए और मनोरंजन के लिए हुआ करती थी। आजकल दिन और रात में कोई फ़र्क ही नहीं रहा। मॉडर्न सिटीज़ मॉल में हमेशा 24 घंटे लाइट जलेगी, सो वहाँ पे देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट। भोजन के नाम पे देख लो आजकल के बच्चे चॉकलेट और टॉफ़ीज़ खा लेते हैं, जिसको कवि ने कहा है कि गोलियां खा करके काम करते हैं, गुजारा करते हैं। तो कहाँ तो वो इंसान जो शाम को सुबह से शाम 5 लीटर दूध पिया करते थे, 15 रोटियां 20 रोटियां खाते थे, और आजकल 2 चॉकलेट खाई और काम चल गया। कोई ये मत कहना सामने से चॉकलेट की क्या क्वालिटी क्या नहीं, बहुत डिमेरिट्स भी हैं इसकी। वो पुरुषत्व ख़त्म हो गया, वो विश्वास ख़त्म हो गया, वो धरा ख़त्म हो गई, वो मंदिर मस्जिदों से, वो चर्च से, गुरुद्वारों से, वो ईश्वर भी, सच्चा ईश्वर दूर चला गया। वो दूर से इंसान को देख रहा है कि अरे इंसान, एक हिंदी का सॉन्ग आता है, देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ये कवि महोदय ने, जो मेरे को लगता है शायद मॉडर्न पोइट्री पढ़कर ही उसकी प्रेरणा से ये गीत लिखा होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब समझ गए होंगे कि मॉडर्न पोइट्री की क्या खास बात है। जैसे मॉडर्न शहर, मॉडर्न सिटीज़, अब थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, दिख रहे हैं दीवारें बड़ी सुंदर सीमेंटेड क्या, और वो ग्रेनाइट टाइल्स की वॉल्स हैं, सड़कें भी ऐसी बड़ी सुंदर हैं। पर शाम का टाइम बता रहा है, शाम को टाइम है, पीली पीली फॉग, धुंध लाइट, सर्च लाइट लग रही हैं, उसके अंदर धुंध जमा हो रही है। सड़कों के ऊपर सिगरेट की, पी हुई सिगरेट की बुझी हुई पीछे के पीसीज, छोटे छोटे पीसीज टुकड़े पड़े हैं। बियर की खाली बॉटल्स पड़ी हैं, उसमें से बदबू मार रही है। और डिस्पोजल क्रॉकरी सड़कों पर उड़ रही है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ये संकेत बताते हैं कि किस टाइप की सिविलाइजेशन है, कैसी सभ्यता है, कैसे लोग हैं। वो लोग भी डिस्पोजल क्रॉकरी की तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़े जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय लर्नर, टी.एस. इलियट महोदय ने बहुत साफ लिखा है, सेक्स जो कभी बड़ा पवित्र माना जाता था, किसी ज़माने में संतान उत्पत्ति करने के लिए माना जाता था, आज वो सेक्स एक मैकेनिकल रूटीन हो गया है। मैकेनिकल रूटीन उन्होंने अपनी पोइम वेस्टलैंड में बताया, प्रूफ रॉक में भी बताया है कि जिस प्रकार से आप बिजली के स्विच में एक प्लग डाल देते हो ना, प्लग डाल देते हो और प्लग वापस निकाल लेते हो, सो दैट टाइप ऑफ मैकेनिकल रूटीन इज़ गोइंग टू टेक प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। जो सेक्स कभी पवित्र माना जाता था, आज उसी सेक्स का कमर्शियलाइजेशन हो चुका है। हर तरफ boys and girls, they are going to utilize their sex for commercialization purpose. विश्वास, आस्था नाम की चीज़ ही नहीं रही, शारीरिक श्रम नहीं रहा, शरीर कमज़ोर हो गए। एज ए रिज़ल्ट क्या चीज़ आ गई, चिंता और टेंशन आ गई। बिना काम की चिंता और टेंशन इतनी गहर हो गई। आज 5 साल के बच्चे को भी मॉडर्न सोसाइटी में टेंशन, 10 साल के बच्चे को भी टेंशन, पढ़ाइयों की टेंशन, चाहे वो पढ़ाई कोई काम की ना आए। 15 साल के बच्चे को टेंशन, 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के। और ये देखना, कभी पुराने ज़माने में 100 साल की, 500 साल की उम्र होती थी, फिर 200 पे आई, फिर 100 साल पे आई। अब हम जो आंखों से देख रहे हैं वो 75 और 85 साल की रह गई। और यही प्रिय विद्यार्थियों, लर्नर्स, आप देखना आगे आने वाले टाइम में ये लाइफ सिकुड़ करके 20 साल पर आ जाएगी। कुत्तों की लाइफ 20 साल की होती है, इंसान की भी 20 साल ही हो जाएगी। एक और बताऊं, कुत्ता तो भी बड़ा श्रेष्ठ है। जब उसकी फीमेल हीट में होती है ना, तभी उसके पास जाता है, वैसे नहीं जाता। कुत्ते की खास बात बता रहा हूँ, अपनी जगह पर जहाँ बैठता है ना, पूँछ मार के साफ करके बैठता है, मालिक के लिए वफादार होता है। 3 क्वालिटी बताई है मैंने, आप बताओ क्या तीनों क्वालिटी आधुनिक इंसान में हैं? हीट में फीमेल होती है कुतिया, तभी कुत्ता उसके पास जाता है। क्या आधुनिक
मनुष्य ऐसा कर रहा है कि केवल संतान उत्पत्ति करने के लिए पवित्र तरीके से सेक्स का प्रयोग करे। नो, उसे तो कोई मतलब ही नहीं है। रात दिन धनाधन अंधे हुए पड़े हैं। दूसरा, मैंने एक बात बताई थी कि कुत्ता अपनी जगह पर पूंछ मार के साफ करके बैठता है। आजकल ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करने वाले सारे दिन अक्सर देखने में आता है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडमिनिस्ट्रेटर वहीं खा लेते हैं, वहीं सो जाते हैं, कोई सफाई नहीं। हफ्ता 10 दिन 15 दिन में बाद में सफाई कर लेते हैं। तीसरा मैंने पॉइंट कहा था फेथ। कुत्ता अपने मालिक के प्रति बड़ा वफादार होता है और यहाँ पर धोखा ही पग पग पर है। जिस मालिक ने आपको जॉब दी, जो ऑनर आपको आजीविका दे रहा है, सोचते हो उसी का गला दबा करके और सारा पैसा हड़प लें। क्या ऐसा मॉडर्न सोसाइटी में नहीं हो रहा है? प्रिय विद्यार्थियों, एम आई राइट और रॉन्ग? ये मेरे व्यूज़ नहीं हैं, ये सारे टी.एस. इलियट महोदय के व्यूज़ हैं। इन बातों पर ध्यान रखना। और उन्होंने एक बात और बताई है, ये तो अशांति की बातें हैं। इस संसार में, इस धरा पर शांति, सच्ची शांति भी प्राप्त की जा सकती है। सच्ची शांति प्राप्त करने के लिए टी.एस. इलियट ने वेद पुराण पढ़े, बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ा। इनका एक टी.एस. इलियट महाकाव्य है जिसका समापन करते हैं शांति ही शांति ही शांति। उसमें एक एपिसोड है, उस एपिसोड के अनुसार ये था कि एक बार पूरी दुनिया में सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। तो हिमालय पर्वत पर, हिमवंत पर, ये शब्द प्रयोग किया हिमवंत, सारे यहाँ के लोग इकट्ठे हुए, आसमान की तरफ, ईश्वर की ओर ऊपर आंख उठा करके, हाथ उठा करके प्रार्थना की कि प्रभु हमें बचाओ, दया करो, क्षमा करो। तब आसमान से आवाज़ आई, दा 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 संस्कृत में है। पहले दा का मतलब दाता, दा दाता, दूसरा दयाधवम और तीसरा दम्यता अर्थात दाता, दान देना। यदि हम सीख लें, हम किसी चिड़िया को भी अन्न खिला देते हैं, गाय को पानी भी पिला देते हैं, कभी दान दे के देखना, कुत्तों को रोटी खिला देते हैं, किसी भूखे राहगीर को रोटी खिला देते हैं, कोई चीज़ ज़रूरतमंद को प्रदान करते हैं, दिल को बड़ी शांति मिलती है। ये प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय लर्नर, प्रिय श्रोताओं, स्पेक्टेटर्स, ऑडियंस, ये आजमा के देखना। दूसरा, दादाता दयाधवम। हमें जीव मात्र के ऊपर सहानुभूति बरतनी चाहिए। छोटे बड़े, परिवार, जड़ चेतन, सभी के सभी इस धरती पर इम्पोर्टेंट है। ये सब दया के हक के लायक हैं। ऐसा ना हो कि हाथी चींटी को नकारने लग जाए, वही चींटी उसकी सूंड में चढ़ जाएगी। तो अंडरस्टैंडिंग, ईश्वर की फैमिली में सभी छोटे बड़े, जड़ चेतन सब इम्पॉर्टेंट हैं। पहाड़, मिट्टी भी इम्पॉर्टेंट है। मिट्टी के अंदर से फसल उत्पन्न होती है, पहाड़ बारिश करने में सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन मनुष्य ने इसका कमर्शलाइजेशन कर दिया, मिट्टी का, धरती का, पहाड़ का, पत्थरों का। जब से कमर्शलाइजेशन हुआ, ईश्वर ने तब से प्रकृति को प्रतिकूल कर दिया। जब बारिश होनी चाहिए तो बारिश नहीं होती, जब नहीं होनी चाहिए तो बारिश होती है। किसान रोते हैं आधुनिक कि ईश्वर रब तूने क्या किया, फसलें पककर तैयार थी, पानी घेर दिया, फसलें खराब। और जब इसको उगाने के लिए पानी चाहिए था तो बिल्कुल सूखा, ड्रॉट। ये इसीलिए हो रहा है कि प्रकृति से छेड़छाड़ जब से मनुष्य ने की, प्रकृति के सीधे नियमों से को उल्टा जब करने की कोशिश की, ईश्वर ने भी उल्टा लटका दिया। गिव, दान देना, सिंपैथाइज, सहानुभूति रखना, कंट्रोल ओवर योर इमोशंस, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखें। ये नहीं कि सारे दिन सेक्स 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 सेक्स, बर्निंग 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 इन द फायर ऑफ सेक्स। ऐसा नहीं प्रिय विद्यार्थियों। यदि ऐसा होगा तो शरीर, मन, मस्तिष्क सारा खोखला हो जाएगा, बेचैनी हो जाएगी। इस संसार के अंदर सब कुछ वैसा ही दिखेगा जैसा आप सोचोगे, तो आपको अपने घर वाले लोगों से भी डर लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये मॉडर्न तस्वीर यहाँ दिखाने की कोशिश की है और हमें एक सॉल्यूशन भी प्रदान कर दिया है। ये सारा कुछ थीम, विषय वस्तु इस कविता के अंदर बहुत अच्छे तरीके से कवि ने रिप्रेजेंट की है। मैं थोड़ा पोइम को पढ़ दूँ। इनकी खास बात है, कवि महोदय ने मॉडर्न पोइट्री में एक इजाज़त दी है कि किसी भी भाषा के शब्द
का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते वो शब्द बिल्कुल भाव और तर्क के अनुसार फिट होने चाहिए। दूसरा, ट्रेडिशन को विशेषता दी है, परंपराओं को विशेषता दी है। जीवन में यदि परंपराएं नहीं होंगी तो जीवन हमारा समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल कंगाल, एकदम जीर्ण शीर्ण टूट फूट की तरफ आ जाएगा। यहाँ आप ध्यान रखना, भारतीय संस्कृति के अंदर आज भी दिवाली, होली जैसी परंपराएं, इन परंपराओं पर दान देना, सहानुभूति रखना, एक दूसरे के साथ स्नेह मिलन कार्यक्रम रखना और अपने इमोशंस पर नियंत्रण रख के पूरे समाज को, समाज के छोटे, सबल, दुर्बल, निर्बल सभी अंगों को एक साथ लेकर के चलना, ये हमारी भारतीय संस्कृति का शुरू से उद्देश्य रहा है और ऐसा समायोजन भी रहा है। बीच में गुलामी के ये 200 साल आए थे जब विदेशी आक्रांताओं ने हमारी सभ्यता संस्कृति को जीर्ण शीर्ण करने की कोशिश की, लेकिन हमारे ही इंडियन सोसाइटी में कुछ ऐसे ब्रोकर निकले, दलाल, दोगले, जिन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की। अन्यथा आज भी अमेरिकन सीनेट में, अमेरिकन वाइट हाउस के अंदर गायत्री मंत्र की गुंजन होती है। अभी पूरी दुनिया ने इसको देखा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय दर्शकों, हमें वो ही भारतीय प्राचीन परंपराओं को पूरे विश्व के अंदर ले जाना है, प्रस्तुत करना है। मात्र प्रस्तुत नहीं करना, हमें भी अपनाना है। हमें, हमारे माता पिता बड़े हमारे लिए आदरणीय हैं। ऐसा नहीं कि घर में जब से लड़के का विवाह हो गया, पत्नी आ गई, उसने माता पिता का कहना ही मानना छोड़ दिया, बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया। यदि कागज़ पे लिख लो आप अपने माता पिता का बॉयकॉट करेंगे, आपकी संतान आपका बॉयकॉट कर देगी। ये हमने इस जीवन में लोगों के माध्यम से अनुभव सुने हैं, देखे हैं, महसूस किए लोगों के अनुभव। हमने बहुत रिस्पेक्ट की है अपने माता पिता की। आप भी अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें। तुलसीदास जी ने एक रामचरितमानस में चौपाई लिखी है, अबलानन जीन दिखी जब लोग, जब से नवविवाहिता का मुँह दिख गया, तब से उसके पति ने माता पिता का कहना मानना, सलाह विचार विमर्श छोड़ दिया। आज अमेरिका, हर देश भारतीय संस्कृति को अपनाने को तैयार है। हमारी क्योंकि संस्कृति बड़ी श्रेष्ठ है। जब जब भारतीय संस्कृति नष्ट हुई है, तब तब पूरी दुनिया के अंदर अकाल फैला है, अधर्म, भ्रष्टाचार फैला है। तब तब अकाल मृत्यु भी फैली है। नाना प्रकार की बीमारी, भूकंप, बाढ़, विपदाएं, आपदाएं भी फैली हैं। भगवान कृष्ण गीता में सही लिखते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य। तो यहाँ प्रिय विद्यार्थियों, मैं अच्छी तरह मान के चलूँ प्रिय लर्नर्स कि भारतीय सभ्यता संस्कृति की विशेषता बताई है टी.एस. इलियट ने। एक अंग्रेज़ विद्वान ने जब बताई है, कोई ना कोई विशेषता होगी, तो हमें भी हृदयंगम करनी चाहिए। हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी पारिवारिक व्यवस्था और हमारी श्रेष्ठता, भव्यता उसी में ही है। अन्यथा हम भी प्रूफ रॉक की तरह से यहाँ पर सेंसलेस हो जाएंगे। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने शब्दों के समायोजन में बताया कि प्रूफ रॉक, ये जो कविता का टाइटल है, बताया है कि फ्रॉक, कोई व्यक्ति किसी फ्रॉक को देख करके और महिला की फ्रॉक, मात्र फ्रॉक को देख करके क्या उसी की तरफ आकर्षित हो जाए? मेरी बात समझ में आ गई? तो इसलिए कामुकता के ऊपर, सेक्सुअलिटी के ऊपर हमें नियंत्रण पाना है, कंट्रोल करना है। हमें सबके साथ सहानुभूति रखनी है। हमारे के अंदर दान देने की योग्यता, दान देने की क्षमता, मानसिकता होनी चाहिए। हमने भारतीय संस्कृति में पढ़ा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय लर्नर्स, इस बात को जीवन में लागू करके देखें। बहुत श्रेष्ठता का प्रस्तुतिकरण किया गया है इस कविता के अंदर, और मैं टी.एस. इलियट साहब को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।